We thank God for the time of worship the Lord gave to us. जो इबादत का वक्त खुदा ने हमें दिया है, उस वक्त को लेकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। The Lord's day, that is today, is a day of universal worship. आज का दिन खुदावंद का दिन है और ये तमाम दुनिया में इबादत का दिन है। On this one day, this Lord God, great God, the King of Kings and the Lord of Lords, is being worshipped from the rising of the sun till the going down of the same. आज के दिन खुदा, जो खुदा ताला है, यहोवा है, इसकी इबादत सुबह से लेकर शाम तक तमाम रुए जमीन में होती रहती है। And we thank God, we who are here in Jehovah Shammah, in this part of the globe, we also could join this universal worship. और हम यहोवा शम्मा के लोग होते हुए, मोमिन होते हुए, इस दुनिया के इस तरफ मशरिकी तरफ रहते हुए उसकी इबादत में हम यहाँ से शामिल होते हैं। And as we were reminded, based on Psalm 98, और जैसे ही हमें हमारे सामने लाया गया था मजमूर नंबर 98, we were able to worship the God who is a God of all marvels. हमारे खुदा की इबादत हम कलाम के जरिए से कर सकते हैं, जो अजीब व गरीब काम करने वाला है। Now, before we take part in the Lord's table, और इस तरह खुदा की मेज में हाथ डालने से पहले shall we prepare ourselves in the light of the Word of God खुदा के कलाम के नूर में हम अपने आप को तैयार करेंगे and also receive what the Lord has got to give us to sustain us this week. और इतना ही नहीं बल्कि ये तमाम आने वाले हफ्ते में हमें रूहानी तरीके से मजबूत करने के लिए खुदा हमें क्या देना चाहता है, हम देखेंगे। Just as the earthly food nourishes and sustains us, जिस तरीके से जिस्मानी ग़िज़ा हमें ताकत बख्शती है और हमारी परवरिश या हमें ताकत बख्शकर जोर देती है, the spiritual food, that is through the Word of God, it nourishes us in our spiritual life. इसी तरीके से खुदा का कलाम हमारी रूहानी खुराक बनकर हमें रूहानी ग़िज़ा बनकर ताकत बख्शती है। So for these two purposes, shall we turn to the Word of God? और इन दो मकसद को याद रखते हुए चलें हम खुदा के कलाम को देखें। We turn to the book of Genesis and chapter 3. हम देखेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 And we will read verse 8, 9 and 10. और आयतें 8, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 3, पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 verses 8, 9 and 10. आयतें 8, 9 और 10। And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. और उन्होंने यहोवा खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को यहोवा खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब यहोवा खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? And verse 16. और 16वीं आयत, Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। And verse 24. और आयत नंबर 24। So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग एदेन के मशरिक की तरफ करीबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। Shall we pray? दुआ करें। Loving Heavenly Father, है हमारे आसमानी बाप, we thank and praise you for this blessed, happy and joyous day that was given to us. आज का दिन जो आप हमारे वास्ते खुशी का दिन जो आपने हमारे लिए दिया है, इस दिन को लेकर शुक्र अदा करते हैं। It's a day of gratitude in our lives. ये हमारी जिंदगियों में बहुत शुक्रगुजारी का दिन It's a है। day to remember
and remind ourselves of all and every blessing with which we have been blessed. और आज का दिन हमें वो तमाम बरकतें याद दिलाता है जिनसे आपने हमें नवाजा है। Truly, O Lord, you are an incomparable blesser. हकीकत में है खुदावंद, आप तो हमें बहुत अजीम तरीके से मुबारक बनाने वाले खुदा हैं। The blessings are so much in our lives. As David says, O Lord, our cup always runs over. आपकी बरकतें हमारी जिंदगियों में इतनी ज्यादा हैं, जैसे कि दावीद बादशाह कहते हैं मजमूर में कि हमारा प्याला वो लबरेज है। Thank you for reminding us of the marvelous things you have done in our lives. हमारी जिंदगियों में जितने भी अजीब और गरीब काम आपने किए हैं, उन सबों को और एक बार हमें याद दिलाने के लिए शुक्र अदा करते That हैं। is a promise you gave to your precious children, your people, the children of Israel. आपके बच्चे इसराइलियों को आपने ये वायदा किया था। You said, O Lord, I will do marvels. आपने कहा था कि मैं अजीब काम करूंगा। But we were not the people of God like them. लेकिन हम तो उनकी तरह खुदा के लोग नहीं रहे थे। O Lord, we are no lesser than the children of Israel. लेकिन हमारा खुदावन आज के दिन हम तो उनसे कहीं भी कम नहीं We रहे। have also become the people of God. हम भी खुदा के लोग बन चुके हैं। That is what Peter assures us in 1 Peter chapter 2 and verse 10. पहला पत्रस 2:10 में रसूल पत्रस यही बात हमें सिखा रहे हैं। And as you did marvels for them, you have done marvels in our lives also. और जैसे उनकी जिंदगियों में आपने अजीब और गरीब काम किए हैं, हमारी जिंदगियों में भी आपने ऐसा ही काम किया है। Reminding ourselves of all these marvels and wonders and blessings, O Lord, we brought our praise and worship and gratitude to you. खुदावंद, आपके सामने आपने जो अजीब और गरीब काम किए हैं, उन सबों को याद करते हुए हमने इबादत लाई है। Believe, Lord, thou hast accepted our few and broken words of worship this evening. ऐ खुदावंद, हम मानते हैं कि आप ये चंद टूटी हुई हमारी इबादत के अल्फाज आप कबूल फरमाए हैं। And now, O Lord, as we prepare ourselves to take part in thy table worthily, pray that thou will speak to us. खुदावन, जैसे ही हम अब आपकी मेज में हाथ डालने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, हम सबों से आप बात करें। Grant us, O Lord, the spiritual manna which you gave to your children, so that in our wilderness journey in this week we may also be sustained. खुदावन, रूहानी ग़िज़ा मन्ना हमारे लिए भी आप मुहैया करें, ताकि आने वाले पूरे हफ्ते में हम भी रूहानी तरीके से कायम रह सकें। We know, Lord, you will not send us away empty from your presence. खुदावन, हम तो वाकिफ हैं कि आप आपकी हुजूरी से हमें खाली हाथ भेजेंगे नहीं। Lord, we are poor and hungry. खुदावन, हम तो भूखे हैं, मोहताज हैं। To whom shall we go? हम किसके पास जा सकते We can हैं? only come to you because thou alone has the words of eternal life. हम तो सिर्फ आपके पास आ सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही हमेशा की जिंदगी का कलाम है। Lord, open thy fist and feed us. ऐ खुदावंद, आपका हाथ खोलें और हमें खुराक बख्शें, And that will be enough, and we will be abundantly satisfied. और वो हमारे लिए काफी है और हम बहुत अच्छे से सैर हो जाएंगे। Lord, bless our time and make it profitable. खुदावंद, हमारा वक्त आप मुबारक बनाएं और हमारे लिए फायदेमंद का वक्त बनाएं। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. क्योंकि ये दुआ हम हमारे खुदावंद यीशुआ के नाम में शुक्रिया अदा करते हुए खुदावंद यीशुआ के नाम में मांगते हैं। Amen. These chapters, chapter 1, chapter 2, and chapter 3, record wonderful things of God's creation, and more particularly, the creation of man. पैदाइश की किताब बाब नंबर 1, 2 और 3 में हम देखते हैं कि खुदा की तख्लीक के बारे में हम पढ़ते हैं और खुसूसन इंसान की तख्लीक के बारे में हम पढ़ते हैं। Even till today, all the scientists put together, all the knowledge and wisdom of the world put together, they have not been able to fully or to explore God's creation. आज के दिन तक भी तमाम साइंसदान लोग जो हैं वो सब के सब मिलकर भी खुदा की शुरुआत काम जो है इंसान का पैदा होना, ये सब कुछ वो बता नहीं पा रहे हैं। Whatever they have discovered is only a small proportion. जो कुछ उन्होंने खोज करके निकाला है वो बहुत थोड़ा सा ही है। And how were they all created? और ये सारी की सारी चीजें बनाई कैसी गई? Our Creator God did not even have to labor. हमारा खालिक खुदा जो है उसको कुछ मुशक्कत करने की जरूरत भी नहीं If you थी। take, for example, a potter, मसलन एक कुम्हार को आप लें, he makes
so many vessels. कुम्हार के पास अगर जाते हैं तो बहुत सारी बर्तन वो बनाते But he रहता है, has to labor and toil, and then the vessels are made. बहुत सारे बर्तन बनाता है, लेकिन उनको बनाने के लिए बहुत काम पे लगता है What और about- मशक्कत करता But है। what about this creator? लेकिन इस खालिक के बारे में क्या है, What about this maker? और ये तख्लीक करने वाले के बारे में क्या है, What about this great and heavenly potter? और ये अजीम और आसमानी कुम्हार के बारे में क्या है। He just uttered a word and it came into being. उसने सिर्फ एक बात बोली, एक लफ्ज बोला और सब कुछ बन गया। And they are there even till today. और आज तक वो वहां हैं, मौजूद हैं। Till about maybe couple of hours ago, we all could see the sun. और चंद घंटों के पहले हम सबों ने भी सूरज को देखा था। After another 2 hours, we'll be able to spot the moon. और 2 घंटे के बाद क्या होगा, हम चांद को देखने लगेंगे। How were they created? ये सब कुछ बनाए कैसे This गए, creator said, "Let there be sun," and it came. और क्योंकि इस खालिक ने कहा था सूरज बन जाए और वो बन गया। He said, "Let there be light," and the light came. उसने कहा रोशनी बन जाए और रोशनी बन गई। What a wonderful thing, isn't it? कितना ही अजीम खुदा है ना। This is what we find in chapter 1. पहला बाब में हम यही बातें देखते हैं। And when we look at creation of man, और जब हम इंसान की तख्लीक के बारे में जब हम he देखते did हैं, not say, "Let there be a man and let there be a woman." खुदा ने ये नहीं कहा था कि एक इंसान बन जाए और एक औरत बन जाए। If he had said that, अगर खुदा कह भी it देता would have happened. ऐसा हो ही भी जाता, No doubt about it. बिल्कुल शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं है। But man was special to God. लेकिन इंसान खुदा की नजर निगाह में खास था। He longed for this man. इंसान के बारे में खुदा ने बड़ी चाहत रखी He was थी। waiting for this man from all eternity. अबदियत से, Eternity past. गुजरी हुई अबदियत से खुदा ने इस इंसान के बारे में ख्याल किया था। Supposing somebody asked him, अगर कोई आकर खुदा से ये पूछता, "Oh God, why do you want a man? ए खुदा, इंसान आपको क्यों चाहिए? Are you not satisfied with this beautiful creation?" क्या जो इतनी अच्छी तख्लीक जो आपने बनाई है, क्या इसे आप खुश नहीं हैं? You can keep on beholding this beautiful creation. इस इतनी अच्छी तख्लीक को आप देखते रह सकते हैं और खुशी उठा सकते हैं। And if that is not enough, अगर उतना भी काफी नहीं हुआ, look at the holy angels. आपके पास तो सैकड़ों बहुत सारे पाक फरिश्ते हैं। Look at the heaven. आसमान बादशाह भी है। Aren't you satisfied or happy with all this? क्या इन सारी चीजों को, बातों को देखकर क्या आपको खुशी नहीं है? The Lord's answer would be, खुदावंद का जवाब ये होता, "No, ये होता कि ना कहता, I want a man. मुझे एक इंसान I want चाहिए, a man. मुझे एक इंसान I चाहिए। want to have fellowship with him. उस इंसान के साथ मैं रिफाकत में जुड़ना I चाहता want to हूँ। dwell with man." मैं इंसान के साथ में बसना चाहता हूँ। Now, I am not saying these words. अजीजों, ये बातें मैं नहीं कह रहा The हूँ, word of God says, खुदा का कलाम ये बातें कहता to है। affirm this desire with which the Lord created man, which we read in the book of Genesis, पैदाइश की किताब में जिस चाहत से खुदा ने इंसान को पैदा किया था, उस चाहत को दिखाने के लिए we see the confirmation of that in the book of Revelation. हम आखिरी किताब मुकाशिफा की किताब में जाकर देखना है। We see that God's desire and his heart's desire in this chapter 21. और मुकाशिफा की किताब 21वां बाब में खुदा की दिल की ख्वाहिश क्या है, हम यहाँ देखते हैं। And John heard a great voice from heaven. यहाँ पे आसमान से यूहन्ना एक आवाज सुनता है। And what is that voice? और वो आवाज क्या थी? Verse 3. आयत नंबर 3। And I heard a great voice out of heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them." फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान What है a wonderful word it is. और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। आदमियों के मध्य में. आदमियों के दरमियान He wants to dwell with man. वो इंसान के बीचों बीच रहना चाहता What है। a lofty desire of the Lord it is. खुदा का कितना ही ऊंचा ख्याल है ना। And now, how did he create this man? तो इस इंसान को खुदा ने किस तरीके से बनाया था? As I mentioned, he did not say, "Let there be a man, let Yes. there be a woman." जैसे मैंने कहा, खुदा ने ऐसा नहीं कहा था कि एक इंसान बन जाए, एक औरत बन जाए। And if you read in Genesis chapter 1, और अगर हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 पढ़ते हैं, verse 26 to 28, 26 से लेकर 28 आयतें, he says, "Let us make man in our image after our likeness."
हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं। Notice that word hum. हाँ, देखें, हम करके बताया गया है। Does not say my. उसने नहीं कहा कि मैं। It is the triune God who created man. क्योंकि यहाँ पे ये वाहिदुल जात का जिक्र है जिसने इंसान को पैदा किया That is था। why the word us is used. इसीलिए हम करके लफ्ज इस्तेमाल किया गया And है। how did he create this man? और उसने इस इंसान को किस तरीके से बनाया? In his image. उसकी मानिंद। Again it is said in our image and after our likeness. हाँ, अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद कहा है। What a wonderful creation man was. इंसान कितनी अच्छी तख्लीक है ना। And again verse 27 it says, और उसके बाद 27वीं आयत में लिखा so हुआ है, God created man in his own image. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। And as if that is not enough. और जैसे कि वो काफी नहीं था। Supposing somebody comes and tells me, अगर मसलन समझें कि कोई आकर मुझसे ये कहता है, you are looking like Prince Charles. आप प्रिंस चार्ल्स की मानिंद दिखते हैं। What do I feel? मैं कैसे महसूस I करता will हूँ? feel so elated. मैं बहुत खुश बन जाऊंगा। My feet will not be on the ground. मेरे पैर जमीन पर टिकेंगे नहीं। I'll be floating in the air. मैं हवा में उड़ते रहूंगा। Why? क्यों? Oh, I'm being compared to Prince Charles. क्योंकि लोग मुझे प्रिंस चार्ल्स की मानिंद But- उसकी छवि में मैं हूं करके बता Yes, रहे हैं। something is greater than Prince Charles. लेकिन यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स से भी बढ़कर कुछ बात है। यहाँ God's पे image man was given. खुदा की सूरत इंसान को दी गई And है। in verse 28 we read, और 28वें आयत में लिखा हुआ है, God blessed them. और खुदा ने उनको मुबारक बनाया। God gave his image to खुदा man. ने अपनी सूरत इंसान को दी, God gave his blessings to man. और खुदा ने अपनी बरकत इंसान को दी। What is the meaning of this blessing? और इस बरकत का मतलब क्या होता है? Not man's blessing. इंसान की बरकत नहीं है He यहाँ did पे। not send angel to bless the man. या इंसान को बरकत देने के लिए फरिश्तों को खुदा ने नहीं He भेजा। himself is blessing with his own blessing. वो खुद अपनी बरकत से इंसान को बरकत दे रहा है। And the book of Proverbs chapter 10 and verse 22 says, और अगर हम पढ़ते हैं तो अमसाल की किताब चैप्टर 10 और वर्स 22 में लिखा हुआ the है, blessing of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. यहोवा की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। That is the blessing of the Lord. वो होता है खुदावंद की बरकत। It not only makes us rich and happy and satisfied, वो बरकत हमें दौलतमंद, खुशी और इत्मीनान और से ही नहीं there is करता, no scope at all for sorrow. बल्कि उसके साथ दुख जुड़ने का सवाल ही नहीं And होता। then thirdly we read, और तीसरी बात हम verse पढ़ते हैं 28, Genesis 1 and verse 28, पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 18, and he gave power and authority to man to have dominion over all that he created. 28 में पढ़ते हैं, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा पूरी की पूरी चीजें जो हैं जो उन्होंने पैदा की हैं उन सबों पर उसने इख्तियार बख्शा। Like in a huge platter, the Lord gave everything to man. ऐसा लगता है कि खुदा ने एक बहुत बड़े प्लेटर में प्लेट में सब कुछ इंसान को उसमें रख कर दे दिया It हो। is just unimaginable. ये तो हमारे तस्वुर और ख्याल से बाहर The है। whole universe, heaven and earth, plattered and given to man. खुदा ने क्या किया, तमाम चीजों को जिन्हें उन्होंने पैदा किया था, तमाम जमीन और आसमान And को when- एक प्लेट पर रख के आदम को दे दिया। And when you come to verse 7 and chapter 2, और 2:7 में जब आते हैं, man received God's life itself. यहाँ पे इंसान ने क्या पाया, खुदा की हयात जो है उसे वो पाया। He got the Spirit of God in him यहाँ पे खुदा की रूह जो है आदम ने वो पाया, because God breathed into his nostrils. क्योंकि खुदा ने आदम के नाथनों में अपनी रूह फूंकी। God gave his image to man. खुदा ने अपनी सूरत इंसान को दी, God blessed him. खुदा ने अपनी बरकत उसे दी, God gave him dominion and authority. खुदा ने उसे इख्तियार बख्शा, God gave his own life and spirit. खुदा ने अपनी जान और अपनी हयात उसे दी। And then in chapter 2 and verse 19 when you read, और 2:19 में हम
पढ़ते हैं, whatever God created, man gave the name for all. जो कुछ खुदा ने बनाया था उनका नाम इंसान ने दिया या रखा था। All these five things are so nice. ये 5 बातें जो हैं बहुत अच्छी लगती But when हैं, we move on to chapter 3, लेकिन जब हम तीसरे बाब में जब आते we हैं, see a sad thing here in this chapter. तीसरे बाब में हम बहुत गम दिलाने वाली बात हम देखते हैं। Such a beautiful, wonderful man, he is becoming a fallen man. ये अजीम और अच्छा इंसान जो था ये गिरा हुआ इंसान बन रहा And है। we know why. और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, How he became that, like that. ऐसा क्यों बन गया, कैसे बन गया, हम जानते हैं। Because of the sin that he committed. हाँ, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने गुनाह किया था, Because he disobeyed God. क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की। And this is the enemy's work. और ये दुश्मन का काम था। He could not see God and man being in fellowship with each other. खुदा और इंसान दोनों मिलकर रिफाकत में रहना वो देख नहीं सकता था। God on one side, खुदा तो एक तरफ है and on the other side, Adam and Eve. और दूसरी तरफ आदम और खव्वा थे। God is a triune God. खुदा तो वाहिदुज़्ज़ात है। And here we find Adam and Eve और यहाँ पे आदम और खव्वा को देखते हैं having wonderful fellowship with the triune God. और इस वाहिदुज़्ज़ात खुदा के साथ ये भी अच्छी सी रिफाकत में जुड़ Enemy गए could हैं। not bear this. और सातान इसको बर्दाश्त नहीं कर He सकता wanted था to break this fellowship. और इस रिफाकत को, शिराकत को वो तोड़ना चाहता He wanted था। to distance man from God. इंसान को खुदा से दूर करना चाह रहा He था wanted to bring that great gap between God and man. और इंसान और खुदा के बीच में बहुत बड़ी दूरी And- वो कायम करना चाहता And the था। sad thing is, he succeeded in that. लेकिन गम की बात यह है कि उस काम में वो जीत गया। Now, when we move to chapter 3, लेकिन जब हम तीसरे बाब में we आते see हैं, 6 things about the fallen man, 6 conditions in this fallen यहाँ man. पे गिरा हुआ इस इंसान के बारे में हम 6 बातें पढ़ते हैं। First of all, पहली बात in verse 8, as we read, हमने देखा 8वीं आयत में, man heard the voice of God. इंसान ने खुदा की आवाज सुनी। Prayers, he was hearing it continuously, regularly. शायद इससे पहले भी वो हमेशा मुसलसल लगातार खुदा की आवाज सुनते ही रहा, But on this day, लेकिन आज के दिन after he disobeyed God and committed sin, खुदा की नाफरमानी करके गुनाह में पड़ने के बाद what is happening to man here? यहाँ पे इंसान को क्या हो रहा In verse है? 8, we read, 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, he hid himself. वो जाकर अपने आप को छिपा लेता है। So coming freely and boldly and having fellowship and communion with God, आजादी के साथ, खुशी के साथ खुदा के सामने आकर शिराकत में, रिफाकत में जुड़ने के इवज he lost that freedom. उसके बदले में क्या हुआ? वो आजादी उसने खो बैठा। This is what sin brought into this world. ये चीज है जो गुनाह इस दुनिया में लाई है। This is what sin has done, separated us from God. हाँ, ये गुनाह जो है खुदा और इंसान को, हमको, हमारे खुदा को दूर किया And है। then secondly, we read दूसरी बात in verse 10, 10वीं आयत, because God says, where are you, Adam? यहाँ पे खुदा कहता है, आदाम तू कहाँ है? What is he saying? वो क्या कहता है? I heard thy voice in the garden. मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी I was afraid. और मैं डर गया। I was afraid. मैं डर गया। Man became a frightened or a fearful man. इंसान एक डरने वाला, कांपने वाला इंसान बन गया। First of all, he lost his fellowship with God. पहली बात यह है कि उसने खुदा के साथ जो उसकी शिराकत थी उसे खो बैठा So he wants to hide himself. और इस बात से वो छिपना चाहा। And then secondly, दूसरी he बात, was filled with fear. वो डर से भर गया। This is what sin does in our lives. गुनाह हमारी जिंदगियों में ऐसा ही कुछ करता And then है। thirdly, और तीसरी he बात, also realized that he is naked. वो उसने ये भी समझा कि वो नंगा This is है। the third effect of sin. और ये तीसरा काम है या असर है गुनाह का। Brings us into not physical but spiritual nakedness. ये हमें जिस्मानी तरीके से नहीं बल्कि रूहानी तरीके से नंगापन दिलाता And है। then fourthly, और चौथी we बात, find in verse 16, और 16वीं आयत, chapter 3 and verse 16, पैदाइश की किताब 3 की 16, this is what the Lord is telling the woman. यहाँ पे खुदा औरत से फरमा रहा है। Middle of the verse he says, in sorrow
thou shalt bring forth children. खुदा कहता है तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। Sorrow entered the Yeah. Garden of Eden. यहाँ पे एदेन के बाग में दुख दाखिल हुआ है, Or put it in another way and a better way, या मजीद अल्फाज में अगर कहना चाहें, the woman started experiencing sorrow in her life. वो औरत जो थी वो अपनी जिंदगी में दुख के एहसास में पड़ गई। And that does not end there. और वहां तो वो रुका नहीं था। What about the man? इंसान के बारे में क्या है? The result of his sin is upon man also. इंसान ने जो गुनाह किया था उसका अंजाम उस पर भी है, And man is cursed. और इंसान मालून हुआ। In verse 17 we read, हम देखते हैं 17वीं आयत में, cursed is the ground for thy sake. चूंकि जमीन तेरे सबब से लानती हुई। Curse upon man. इंसान पर लानत है। Sorrow for the woman औरत को दुख हुआ till that time. उस वक्त तक Both the woman and the man, they were blessed by God. औरत और इंसान मर्द दोनों पर खुदा की बरकत थी। What did we read in Proverbs 10 and verse 22? हम क्या देखते हैं अमसाल की किताब, The blessing of the Lord, it addeth no sorrow with it. खुदावंद यहोवा की बरकत में दुख नहीं वो जोड़ता। Now that very dukh is coming to woman. लेकिन अब वो दुख जो है वो औरत पर आ रहा है, And man is now receiving the curse. और अब इंसान भी लानत पा रहा है। From that time onwards, man has been living in curse. और उस वक्त से लेकर इंसान लानत में ही जी रहा है। And then, sixthly, और उसके बाद छठी बात verse 24 we read, 24वीं आयत में पढ़ते हैं, very sad verse it is. ये वो बहुत दुख देने वाला लफ्ज We है। read that, so God drove out the man. चुनांचे उसने आदाम को निकाल दिया, Separation from the Creator. खालिक से जुदाई। He became naked. वो नंगा हो गया, There was fear. उसमें दुख था, He was hiding. वो अपने आप को छिपा रहा The woman था। came under sorrow. औरत के ऊपर दर्द आ गया है, And the man comes under curse. और इंसान या आदम के ऊपर लानत आ गया है। Both of them are driven away from the presence of God और दोनों- and from the Garden of Eden. और दोनों को खुदा की मौजूदगी से, हुजूरी से और बागे एदेन से खारिज किया गया। How much the Lord would have grieved that day. उस दिन खुदावंद कितने ही दुख उठाए How होंगे, disappointed you would have been. खुदावंद का दिल कितना ही गम से भरा And हुआ as this होगा। was happening, और जैसा ही ये हो रहा oh, था, Satan would have had a hearty laugh. सातान खुशी से भरकर ललकार रहा होगा। What has happened to your fellowship? क्या हुआ आप लोगों की रिफाकत को? What happened to the man whom you created? क्या हुआ जिस आदम को जिसे आपने पैदा किया? You gave your image. आपने अपनी सूरत You दी, gave him authority. आपने अपना इख्तियार बख्शा, You blessed him. आपने अपनी बरकत दी, You gave your spirit to him. आपने अपना रूह दिया, You gave all the privileges. आपने सारी बरकतें उस पर Where बरसाई। is he? What has happened to this man? लेकिन अब उसका क्या हुआ? वो कहाँ रहा? अब Sad day for the Lord. खुदावंद के लिए बहुत दिलसोज दिन था, Sad moment for the Lord. खुदावंद के लिए बहुत दिलसोज पल था। All because of sin which entered into man. ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि वो गुनाह जो इंसान में आया था उसकी वजह से। But see the grace of God here. लेकिन यहाँ पे खुदा का फजल In the same देखें, chapter, इसी बाब the में love of God, खुदा की मोहब्बत देखें, as we saw at the time of worship, जैसे हमने इबादत के वक्त देखा। another marvel of God here. खुदा का और एक अजीब काम यहाँ देखते I हैं। think this is the first marvel to take place in the life of man. यहाँ पे मैं समझता हूँ इंसान की जिंदगी में होने वाला पहला अजीब काम शायद यही And है, this marvel had a great effect, impact, and meaning for all future. और मैं समझता हूँ कि ये अजीब काम जो है ये इंसान के पूरे दिन या मुस्तकबिल के लिए एक असरदार काम करने वाला है। Now, why do we say that? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? Now, let us read verse 21. देखें 21वीं आयत देखेंगे, Genesis chapter 3 and verse 21. पैदाइश की किताब 3 की 21। Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. और यहोवा खुदा ने आदाम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। Dearly beloved, this is beyond human understanding to see and perceive
the love of God. अजीजों, ये इंसानी फहम के परे है कि खुदा का फजल और उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी है। Even though there is a mention of sorrow and curse, यहाँ पे दर्द और लानत का जिक्र तो है, and the fact is, लेकिन हकीकत यह है both of them were naked. वो दोनों नंगे थे। And see the love of God, यहाँ पे खुदा की मोहब्बत see देखें, the provision of God. खुदा जो उन्हें मुहैया करता है वो He did देखें। not send them out of the Garden of Eden as naked man and naked woman. खुदा ने आदम और खव्वा को बागे एदेन से नंगा मर्द और नंगी औरत रखते हुए नहीं भेजा। They tried to cover their nakedness, उन्होंने अपना नंगापन छिपाना चाहा, and we know what they had done. और उन्होंने क्या किया वो हम जानते हैं। They tried to cover their nakedness with the leaves, उन्होंने पत्तों से अपने नंगेपन को छिपाना but that चाहा, is not permanent. लेकिन वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है। They need some permanent covering and clothing. लेकिन उनको क्या चाहिए था? उनको हमेशा रहने वाला लिबास या हमेशा उनको ढक कर रखने वाली चीज चाहिए It थी। is true the Lord was disappointed and angry with them. हकीकत यह है कि खुदा इंसान के रवैये और काम से बहुत नाखुश And हुआ, a very strong word is used. He drove them away from the Garden of और Eden. यहाँ बहुत सख्त अल्फाज में बताया जाता है कि उसने बागे एदेन से उनको खारिज कर It दिया, is the right and righteous judgment of God upon them. और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का बहुत हक से रास्ती से भरी हुई अदालत और सजा उन पर हुई थी। But at the same time, लेकिन उसी दौरान see the marvelous operation of the love of God. खुदा की मोहब्बत किस तरीके से उन पर कसरत से नाजिल होती He है sent them फरमाया। out clothed outside. ऐसा फरमाया गया है, उन्हें मुलब्बिस करके बाहर भेजा। How did he cover their nakedness? उनका नंगापन जो है उसे खुदा ने किस तरह ढका? The word of God says here, यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता he है, made coats of skin. उसने चमड़े के कुर्ते बनाया। Where did this skin come from? ये चमड़ा कहाँ से आया? An animal had to be slain. एक जानवर को ज़बह करने की जरूरत पड़ी। That animal had to shed its blood. एक जानवर का खून बहाया गया था, And that covering of the skin of that animal could cover the nakedness of both Adam and Eve. और उस जानवर का चमड़ा जो है वो इस आदम और उसकी बीवी के नंगेपन को ढक दिया था। Nothing else could cover their nakedness. उनका नंगापन जो था उसे और जो भी चीज है या किसी भी चीज से ढका नहीं गया And था। that is how God's love was shown to them. इस तरीके से खुदा की मोहब्बत उनके सामने जाहिर की गई। What a marvelous love this is. खुदा की मोहब्बत कितनी ही अजीम है ना। This is what we find as an example in the parable of the prodigal. यही बात हम वो मुफलिस बेटे की जिंदगी में हम देखते हैं। We see and we know how this son returned to his father. हम जानते हैं कि ये बेटा जो है वो किस तरीके से ये मुसरिफ बेटा बाप के पास आया था। He not only lost all the wealth of his father, the money, ये बेटा जो है वो अपना माल जो था, दौलत जो थी बाप का, वो सब कुछ लुटा दिया था। he was not only on the verge of death, वो तकरीबन मौत के करीब पहुंचा था। because that is what he says in Luke chapter 15 and verse 17. क्योंकि वो यही बात दोहराता है लूका की खुशखबरी 15 की 17 में। He says, I am about to perish. वो कहता है मैं भूखा मर रहा हूँ। Oh, he was at the verge of death. वो तकरीबन मर रहा है। And not only that, इतना ही नहीं, then he was returning home. वो वापस घर आ रहा है। The love of this father. देखें इस बाप की मोहब्बत को देखें। It's an example of the love of that great father. ये उस अजीम बाप की मोहब्बत का एक तमसील है। As he was returning home, जैसे ही ये मुसरिफ बेटा वापस घर आ रहा it is है, not the son who spotted the ये father. बेटा नहीं था जो जिसने पहले बाप को देखा था, It is the father who spotted the son. बल्कि ये बाप था जिसने पहले बेटे को जाना पहचाना। Why? क्यों? With great love and in anticipation, he was looking forward for the return of this son. क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ ये बाप जो है उस बेटे की राह तकते हुए मुंतजिर बैठा था। Perhaps the father was saying to himself, शायद बाप अपने आप को ऐसा कहते आया, I have given him large amount of money to my son, मैंने मेरे बेटे को बहुत बड़ी दौलत दी है and he's gone with his friends. और उसने अपने दोस्तों के साथ गया है, They should all be enjoying there.
there. शायद वो लोग सबके सब वहाँ खुशियों में डूबे If हैं। need be, I will send some more money also. शायद अगर चाहे तो जरूरत पड़ी तो मैं और भी दौलत दे सकता हूँ। Thank God there was no WhatsApp or GPay those days. हाँ, शुक्र है खुदा का उन दिनों में व्हाट्सएप या जीपे या ऐसा कुछ नहीं था। If that was there, अगर ऐसा भी कुछ होता, I'm sure this loving father would have sent some more money to him. मैं यकीन मानता हूँ कि ये बाप जो है, मोहब्बत वाला बाप, और भी दौलत पैसे भेजता। But the desire of the father was, लेकिन बाप की चाहत ये थी, when will my son come home? मेरा बेटा कब घर वापस आएगा। I am longing for my son. मेरे बेटे का मैं मुश्ताक I am हूँ। looking forward for my son. मेरे बेटे की राह में तकता हूँ। My house is empty to that extent when my son, my younger son is away from home. मेरा घर इतना सुना सुना मुझे लगता है जब तक, क्योंकि मेरा छोटा बेटा घर से बाहर है, इसीलिए I could understand that feeling to a certain extent. मैं उसका दर्द मैं थोड़ा सा समझ सकता। God has given me 2 children. खुदा ने मुझे भी 2 बच्चे दिए हैं। Both of them are married and settled there away. हाँ, दोनों भी शादीशुदा हैं और दूर जगहों में वो बस रहे They are हैं। quite all right. वो सब अच्छे They हैं, are happy and blessed. वो लोग मुबारक हैं और खुश हैं। But my urge is, my longing is, लेकिन मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है, so also my wife, और मेरी शरीके हयात का भी ख्वाहिश और तमन्ना ये when है, will my children come? मेरे बच्चे कब लौटेंगे। Once my son said, एक बार मेरे बेटे ने मुझसे कहा, Papa, I am planning to come. पापा मैं आना चाहता हूँ। I asked him, मैंने कहा, when? मैंने पूछा How, कब आएगा, how long? कब तक आएगा। He said, उसने कहा, one day I can give. एक दिन तो मैं दे सकता हूँ। You know what was my attitude? मेरा रवैया क्या था पता है? Even if you come for 1 hour also it is enough. हाँ, मैंने सोचा कि अगर तू 1 घंटे के लिए भी आएगा ना, मेरे लिए काफी है। That is the longing of a father. एक बाप की आरज़ू या तमन्ना इस तरह होती है, Missing the son, बेटे को खोया जैसा, missing the children, बच्चों को खोया जैसा। missing even a daughter if the father has. अगर बाप को एक बेटी होती है तो बेटी को खोने का एहसास ही रुला देता है। I'm sure this was the experience of this father. मैं यकीन मानता हूँ कि शायद यही है इस बाप की भी हालत। I'm sure my son is all right. उसे पता था कि वो शायद सोचता था कि मुझे पता है कि मेरा बेटा अच्छा है, I want my son. लेकिन मुझे मेरे बेटा चाहिए। I want to see my son. मेरे बेटे को मैं देखना I चाहता want हूँ। my son to come home. मेरा बेटा वापस घर आना मैं चाहता What a हूँ। longing it ये is. कितनी ही अच्छी बड़ी आरज़ू है ना। And that love does not stop there with that और desire. वो प्यार जो है, वो प्यार उस चाहत से रुकती नहीं And the है, love forced him into a preparation. और वो प्यार जो है उसे, उस बाप को अपने आप को तैयार रखने के लिए मजबूर किया है। What is that वो preparation? तैयारी क्या He है? wanted to welcome his son. अपने बेटे को वो खुशामद कहना चाहता था। Whatever may be the state with which he may come, किसी भी हालत में वो क्यों ना वापस आए, I must give him the best. मैं तो उसे अफजल चीजें दूंगा। What will I give him? मैं क्या दूंगा What उसे? did he tell? What do we read in that parable? हम इस पैराबल में, तमसील में क्या पढ़ते हैं? Bring forth the breaststroke. बाप ने कहा सबसे अच्छा लिबास ले आओ। The father did not say, tell the servants, spare one of your garments. बाप ने नौकरों से ये नहीं कहा कि आपके कपड़ों में से कुछ कपड़े दे दें। This anticipating father ये बाप जो मुंतजिर और मुश्ताक था, kept nothing less than the best robe. उसने अपने बच्चे के लिए, लड़के के लिए, बेटे के लिए अच्छे से अच्छा लिबास महफूज रखा था। Don't know how much money he spent. हमें पता नहीं कि उस लिबास के लिए उसने कितने पैसे Don't खर्च know from किए, where he brought this best robe. या ये अच्छे से अच्छा लिबास जो है वो कहाँ से वो मोल के लाया But है, he brought it. लेकिन उसने लाया है, He kept it. उसे महफूज रखा भी It was है ready. और वो तैयार है। Why? क्यों? That is the father's love. क्योंकि वो बाप का प्यार है। See the father's love here. यहाँ पे बाप का प्यार आप See देखें, the creator's love here. यहाँ पे इस खालिक की मोहब्बत They देखें। have grieved the Lord. उसने उस बाप को, उस खुदावंद को उन्होंने दुख और They ठेस have पहुंचाया। disappointed the God who created them. खुदा जिसने उसे बनाया था उसका दिल तोड़ा, So sorrow is being spoken to them and curse. इसीलिए उन पर लानत और दुख और दर्द आने लगे। But even in that, लेकिन इनके दरमियान we भी, read in the book of Habakkuk, हबक्कुक की किताब में पढ़ते हैं, he says, Habakkuk says, हबक्कुक कहता है in thy wrath
remember mercy. हाँ, हबक्कुक कहता है तेरे गजब में फजल याद करना। This is the character of God. ये है खुदा का रवैया। Justice demands wrath to be upon them. अदालत तो ये चाहती है कि उन पर खुदा का गजब नाजिल But हो, love constrains God to love. लेकिन खुदा का प्यार जो है वो खुदा को उन पर मोहब्बत बरसाने के लिए कहता है। What do we see here? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? See the provision of love. यहाँ पे प्यार मुहैया किया जाता है। God was saying to himself, खुदा ने अपने आप से कहा, I am grieved. मैं तो बहुत दिलसोज हूँ, I am disappointed. मैं तो बहुत गमगीन हूँ, I never expected this. मैंने ऐसा कभी नहीं I तसव्वुर किया। have to drive them out. मुझे तो इनको बाहर निकाल कर खारिज करना है। Before I do that, लेकिन ऐसा करने से पहले let me show my love. मेरा प्यार मैं उन पर बरसाऊंगा, Let me show my mercy. मेरी रहमतें उन पर Let me show my kindness. और मेरी उल्फत उन पर बरसाऊंगा। How will I send them? मैं उन्हें किस तरीके से बाहर भेजूंगा? Cover their nakedness and send them. उनके नंगेपन को ढक कर मैं बाहर भेजूंगा। What a love this is. ये कितनी बड़ी मोहब्बत We है ना। just cannot understand this love. इस मोहब्बत को हम इतनी आसानी से समझ नहीं It पाते। is beyond our human comprehension. इंसानी तसव्वुर और ख्याल से ये परे है। Why should God love them? खुदा उनको इस तरीके से क्यों मोहब्बत प्यार करना है? Why should He do all this for them? ये सब कुछ खुदा उनके लिए क्यों करना है? And for this, और इसके वास्ते an innocent beast was slain. एक मासूम जानवर का ज़बह किया गया था। This is a picture of God's love ये है- and what He has done for you and I, dearly beloved. अजीजों, ये है खुदा की मोहब्बत का मंजर और जो कुछ उसने आपके वास्ते मेरे वास्ते किया है उसकी तस्वीर। In order to cover our nakedness, हमारे नंगेपन को ढकने के वास्ते what has God the Father done? हमारे आसमानी बाप ने क्या किया? He slew none else, no one else, nothing else than His own beloved Son. उसने अपने इकलौते बेटे को उसने ज़बह किया। And that is why the Word of God says, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, Behold the Lamb of God, which carries the sin of the world. देखो ये है खुदा का वो बर्रा जो तमाम दुनिया के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। And John, the apostle who witnessed all this, John the writer also who witnessed all this when it happened to the Lord Jesus. और उसके बाद यूहन्ना जो ये सब कुछ देख रहा था, ये सब कुछ खुदावंद यीशुआ को होने के बाद What do we read now in the book of Revelation? हम मुकाशिफा की किताब में क्या पढ़ते हैं? What do we read in chapter 5? बाब नंबर 5 में क्या पढ़ते हैं? When the heaven was opened, वहां पे जब आसमान खुल जाता है, what is John seeing there? वहां पे यूहन्ना क्या देखता है? The lamb as it had been slain. वहां पे ऐसा देखता है कि वहां पे एक बर्रा है जो गोया ज़बह किया गया हो। Who is this lamb? ये बर्रा कौन है? Why was this lamb slain? ये बर्रा गोया ज़बह किया हुआ क्यों है? Who slew this lamb? इस बर्रे को किसने ज़बह किया? All this points to the person of the Lord Jesus ये Christ. सब कुछ हमारे खुदावंद यीशुआ को दिखाता है। John is seeing that lamb. यूहन्ना उस बर्रे को देख रहा The है। marks of Calvary are upon that lamb. कलवरी के निशान जो हैं वो सब के सब निशान उस बर्रे पर हैं। That is why he is called as a slain lamb of God. इसीलिए उस बर्रे को खुदा का ज़बह किया गया बर्रा कहा And जाता है। because our Lord was slain for your sake and my sake on the cross, और क्योंकि हमारे वास्ते आपके वास्ते खुदावंद यीशुआ को खुदा ने सलीब पर मसलूब व मकतूल किया, what is the result and blessing of that? उसका अंजाम और उसका रिजल्ट क्या हुआ? Adam and Eve were clothed with coats of skin. उन दिनों में तो आदम और खव्वा को खुदा ने चमड़ों के लिबास से ढका। But what about you and I? लेकिन आपके और हमारे बारे में क्या है? Our nakedness was covered with so many garments. हमारा नंगापन है उसे तरह तरह के लिबास से खुदा ने ढक दिया। Turn to Isaiah chapter 61 देखें एशिया की किताब चैप्टर 61 and verse 10. 61 की 10। It says in the middle of the verse, For he hath clothed me with the garments of salvation. बीच में लिखा हुआ है क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। This is the garment the Lord has given to us. यह है एक लिबास या कपड़ा जो खुदा ने हमें दिया है। These are not physical ये garments. जिस्मानी कपड़े नहीं हैं, These are spiritual ये garments. रूहानी कपड़े हैं। And the very first garment is, और सबसे अव्वल कपड़ा या लिबास ये है, as soon as we receive this great salvation, जब हम ये नजात पाते हैं उसके फौरन according to Hebrews chapter 2 and verse 3, इब्रानियों
की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 3 We के also receive मुताबिक the joy of salvation. हम क्या पाते हैं? हम नजात की खुशी पाते हैं। And Peter says, और पतरस रसूल कहते it हैं, is a joy unspeakable. और ये कहते हैं कि ये जो खुशी जो है ये बयान से बाहर है। And the Lord did not stop with और that. खुदा वहां से रुक नहीं गया। Cover my nakedness and your nakedness. मेरी और आपका नंगापन ढकने के He वास्ते has clothed us with the garments of salvation. खुदा ने हमें नजात के कपड़े से मुलब्बिस किया। What a wonderful garment it ये is. कितना ही बहुत अच्छा या अजीम कपड़ा है ना। He's not only he clothed us with the garments of salvation. उसने हमें नजात के कपड़े पहनाए, इतने ही नहीं The same verse, बल्कि इसी आयत in में the next part it says, अगले हिस्से में बताया गया He है, has covered me with the robe of righteousness. रास्तबाजी की खिलात से मुझे मुलब्बस किया। In English it says, He has covered me. अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है कि उसने मुझे ढका है। In Telugu and some other languages, तेलुगु में और बाकी कुछ जुबानों में it says, it is an overcoat. It says in Telugu, pai batta. उर्दू में भी अच्छा सा लिखा हुआ है खिलात से। Oh, wonderful. Very good translation in Urdu also. उर्दू में बहुत अच्छा है। खिलत जो हम ऊपर ओढ़ कर पहनते हैं। It is an overcoat. ये जो हम ऊपर ओढ़ कर पहनते Do you know हैं। what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? The overcoat brings dignity and honor to a person. ये खिलत जो है ये एक इंसान को एक इज्जत देती है। We were naked in the past. हम सब इससे पहले नंगे थे। Now today He has clothed us with the garments of salvation. लेकिन आज के दिन खुदा ने हमें रूहानी कपड़े बख्शे हैं। And on top of that He has given us the robe of righteousness, overcoat of righteousness. और उसके बाद खुदा ने हमें रास्तबाजी की खिलत बख्शी है। Why has He done that? ऐसा खुदा ने क्यों किया? Isaiah 43 and verse 4 gives us the answer. एशिया की किताब 43 की 4 में ऐसा लिखा हुआ है। The word of God says, खुदा का कलाम बताता है, Since thou hast been precious, thou hast also been honorable, and I have loved you. क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। This is the reason why this overcoat has been given to us. और इस वजह से हमारे वास्ते ये रास्तबाजी की खिलत हमें दी गई। What is that robe? ये खिलत क्या It's है? the robe of righteousness. ये रास्तबाजी की खिलत It is है। not our righteousness. ये हमारी खिलत नहीं है। We had in the past having and depending and boasting in our righteousness. हमने तो इससे पहले हमारी खुद की रास्तबाजी पर फख्र मारते थे। This is the reason why some people reject the gospel. इसीलिए कुछ लोग ये खुशखबरी, खुदा की खुशखबरी को तर्क भी करते रहते I हैं। am all right. मैं बहुत अच्छा हूँ, I don't even utter a lie. मैं कुछ झूठ बोलता नहीं I हूँ, don't see any bad things. मैं कुछ गंदी चीजें देखता My नहीं हूँ, life is clean. मेरी जिंदगी साफ है। Oh, they depend on their self-righteousness. वो लोग अपनी खुद की रास्तबाजी But the पर word- तकिया करते हैं। But the word of God says in Isaiah 64, लेकिन एशिया की किताब चैप्टर 64 में खुदा का कलाम फरमाता we है, read that in verse 6, आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है, our righteousness is like filthy rags. हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। Two things are mentioned. यहाँ पे दो बातें बताई गई They हैं। are filthy वो नापाक हैं and they are rags. और वो छीतड़े हैं। The rags cannot cover the nakedness. नापाक छीतड़े जो होते हैं वो नंगेपन को ढक नहीं सकते। We see the poor people, the beggars with such rags. कभी कभार इन छीतड़ों को पहनकर कुछ गरीब तरीन लोग सड़क पर जाते हुए हम देखते हैं। And the word of God says they are also filthy. और खुदा का कलाम बताता है कि ये नापाक छीतड़े हैं। That was our past. हमारी जिंदगी माजी में इस तरह थी। That was our garment. हमारे लिबास उस तरह थे। The Lord has removed that. खुदा ने उनको हमसे दूर कर He दिया। has given us the overcoat, the robe of righteousness. लेकिन खुदा ने क्या किया है? उसने हमें रास्तबाजी की खिलत दी है। We did not have to do anything for that. इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। No effort and no payment. हमारी तरफ से कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी।
It has been imputed unto us. खुदा ने मुफ्त में इसे हम पर लाद दिया है। What a wonderful garment it is. ये कितनी अच्छी खिलत है या लिबास है। Then coming back to Isaiah chapter 61 वापिस आएंगे एशिया की किताब चैप्टर 61 and verse 3. और आयत नंबर 3। In the middle of the verse we read, यहाँ आयत के बीच में पढ़ते हैं, the garment of praise for the spirit of heaviness. और उदासी के बदले सिताइश का खिलत। This is the third garment Lord has given to us. ये तीसरा लिबास है जो खुदा ने हमें दिया है, Garments of praise. सिताइश का खिलत। This is what makes a believer to worship, praise and thank the Lord at all times in every situation. ये जो है इससे एक यीशुई मोमिन हर एक वक्त खुदा की इबादत और सिताइश करने में मशगूल रहता है। David is an example of that. इसका दावीद एक अच्छी सी तमसील है। Job is another more effective example of that. दावीद से भी ज्यादा ईयोब जो है वो और भी बड़ा अच्छी सी तमसील है। What does David say in Psalms 34 and verse 1? 34 और 1 मज़ामिर की किताब में दावीद क्या कहता He है? says, I will bless the Lord at all times, वो कहता and है, his praise shall be continually in my mouth. वो कहता है, मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हर वक्त, whether it is good वक्त or bad. मतलब अच्छा वक्त हो, उसके लिए बुरा वक्त हो, जो भी हो, हर वक्त वो सिताइश करेगा। Whatever may be the trial, उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की आजमाइश क्यों ना आए, whatever may be the difficulty, मुसीबत किस तरह की क्यों ना आए, whatever was his challenge or mountain before him, उसके सामने मुसीबतें दीवार या पहाड़ बनकर क्यों ना बने, he was a blesser of God. वो हमेशा खुदा को मुबारक कहने वाला And he है। says, his praise shall continually be in my mouth. और वो कहता है कि उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। What do we read about Job? और योब के बारे में क्या पढ़ते हैं? Just imagine, one day he lost everything. एक बात याद रखना कि एक ही दिन में उसने सब कुछ खो बैठा था, Empty handed. खाली हाथ बन गया, House is empty. घर खाली हो गया, Fields are empty. खेत खाली हो गए, No life around him. उसके सामने उनके लोग जान खो चुके हैं। Imagine this man was conducting a mass funeral. याद करें कि शायद वो इंसान उसी दिन बहुत सैकड़ों लोगों का फ्यूनरल कर रहा What a हो। miserable day it was for him. उसके लिए वो दिन कितना ही दिलसोज दिन होगा। Anyone else would have cursed God. अगर कोई उसकी जगह में रहता तो खुदा को इतना लानत बकता खुदा के That is खिलाफ। what his wife advised him to do. उसकी बीवी भी तकरीबन उतना वैसे ही उसको मशवरा दी Why don't you थी। curse God and die? उसने कहा खुदा को तू लानत देकर मर क्यों नहीं जाता? But did Job do that? लेकिन क्या योब ने ऐसा किया था? What was his attitude? उसका रवैया क्या था? What are the words that proceeded out of his mouth? उसके मुंह में से क्या बातें निकली? He was a true worshipper. वो सच्चे आबिद था। He had the garment of praise. उसके पास ये सिताइश का खिलत था। First of all, he said, पहली बात उसने ये कहा, the Lord gave, खुदावन ने दिया, the Lord has taken. खुदावन ने ले लिया, Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। And in Job chapter 1 and verse 21 we read, और योब की किताब बाब नंबर 1 के 21 में हम पढ़ते हैं, Job worshiped the Lord. वहां हम ये पढ़ते हैं कि योब ने क्या किया था? खुदावंद की इबादत उसने किया था। Not when everything was good and comfortable and joyful. उस वक्त नहीं जब सब कुछ भला चंगा अच्छा खुशनुमा दिखता रहा था। In his utter grief, he showed and exhibited he had the garment of praise. लेकिन जब उसका दिल खाकसार हो गया, उसकी जिंदगी खाकसार हो गई, उतने दर्द और दुख में उसने खुदा को मुबारक कहा। How is our attitude? हमारा रवैया कैसा है? What is the garment that we are wearing? हम किस तरह के लिबास पहन रहे This is हैं? the garment the Lord has given to us. ये है वो लिबास जो खुदा ने उसे दिया था। Garments of salvation, नजात के लिबास, overcoat of righteousness, रास्तबाजी का खिलत, garments of praise. सिताइश के खिलत। And then fourthly, और उसके बाद चौथी बात, 1 Peter पहला पत्रस and chapter 5. बाब नंबर 5, 1 Peter chapter 5 पहला पत्रस 5वां बाब and verse 5. और आयत नंबर 5। Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility.
जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। Peter, the man of God, is mentioning about another garment here. पतरस खुदा का बंदा और एक कपड़े के बारे में यहाँ फरमा रहा है। He says, be clothed with humility. वो कहता है कि तुम फिरौतनी के कपड़े पहन लो। Why? क्यों? Because our Lord himself was clothed with humility. क्योंकि हमारे खुदावन जो हैं वो खुद इस फिरौतनी से मुलब्बिस थे। One good example we find of the Lord with these garments of humility in John's Gospel chapter 13. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 13 में हम देखते हैं हमारे खुदाबंद किस तरीके से फिरौतनी से मुलब्बस दिखते हैं वहां As पे। they were all having supper, जब वो सब के सब बैठकर खाना खा रहे we थे, read that Jesus rose from the supper वहां लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ खाने से उठते and हैं very clearly the word of God says और वहां पे साफ तरीके से खुदा का कलाम बताता है that he laid aside his कि garment. उसने अपने ऊपर का चौगा जो है, कपड़ा जो है, उसे उतारा। Verse 4. आयत नंबर 4, He riseth from supper and laid aside his garments. दस्तरखां से उठकर कपड़े उतारे। Why? What for? क्यों? किस लिए? He's putting on some other garment. उसने किसी और दूसरे किस्म के कपड़े अपने ऊपर It ले लिए। says he took a towel and girded himself. उसने क्या किया? रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। What is this towel? ये रुमाल क्या था? Speaks about the garment of humility. ये रुमाल जो है ये हलीम बन या खाकसारी के लिबास हैं। Why did he have to put on this garment? ये लिबास या उन्हें क्यों पहनना पड़ा? Why does he have to set aside his garment? अपने कपड़े लिबास क्यों उतारने पड़े? He had to show his humility. खुदावंद यीशुआ ने अपनी खाकसारी या हलीमी It दिखाना also चाहा। speaks about the garment of service. इतना ही नहीं बल्कि खिदमत गुजारी के लिबास पहने। And whom is he serving? और किन की खिदमत गुजारी खुदा Whom कर did रहे he हैं? serve? किन की खिदमत गुजारी किए? Who is doing all ये this? सब कुछ कौन कर रहे The हैं? master is doing for his own disciples. यहाँ पे मालिक अपने खादिमों के वास्ते ऐसा कर रहा है। Which master will do this? किस कौन सा मालिक ऐसा करेगा? Which master has done this? कि कौन सा मालिक अपने शागिर्दों के लिए ऐसा कर सकता है? We'll find that only in the person of the Lord Jesus. ये हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ में ही हम देखते हैं। Now, not only he put on this garment and showed it as an example, खुदावंद यीशुआ ने ये लिबास पहनकर अपने आप को हलीम बनाकर एक मिसाल के तौर पर पेश किया, it is his desire you and I also must be found with this garment. बल्कि खुदावंद की ये भी मर्जी है कि आप और मैं हम सब इस तरीके से हम पेश आए। I may appear very humble. मैं तो दिखने के लिए बहुत हलीम दिख सकता हूँ People might call me as humble, और लोग मुझे बहुत अच्छा हलीम इंसान बोल सकते हैं, but when the Lord looks at the heart, लेकिन जब खुदा मेरे दिल पर नजर करता है, let the Lord find humility in my heart. क्या खुदा मेरे दिल में ये खाकसारी हलीमी देख सकता है क्या? I think many times many of us are guilty of spiritual pride. क्योंकि हम में बहुत सारे लोग बहुत सारी बार रूहानी तकब्बुर के मुजरिम होते हैं। How sad it is. ये बहुत दिलसोज बात है ना। Look at our Lord and Master. देखें हमारे मालिक और खुदावंद की बात See देखें, the garment that he had. उनके पास जो कपड़े हैं उन्हें देखें, They were garments of humility. ये खाकसारी या हलीमी के लिबास हैं, Garments of service. ये खिदमत गुजारी के लिबास Many हैं। are in need today, dearly beloved. अजीजों, आज के दिन बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं, Many require help. बहुत सारे लोगों को मदद की जरूरत Many are है, in discouragement. बहुत सारे लोग गम में डूबे हुए हैं, Many are going through periods of loneliness. बहुत सारे लोग अकेलेपन के दौरे में चल रहे हैं, Many are facing trials and difficulties. बहुत सारे लोग आजकल बहुत मुसीबतों में या तकलीफों में से गुजर रहे हैं। Who will care for them? उनका कौन खबर लेने वाला है? Who will go for their help? उनकी मदद कौन करने वाला है? Only those who have these garments of humility, garments of service,
they will be able to help. जिनके पास ये खाकसारी के कपड़े हैं और खिदमत गुजारी के कपड़े हैं, ये लोग ही उनके लिए आगे बढ़ सकते हैं। Oh, may the Lord give us the grace to put on, have these garments also. खुदा हम पर भी वो फजल अता करे कि हम भी वो कपड़े हमेशा पहने रहें। So before we take part in the Lord's table, तो खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले let us remind ourselves, once upon a time we were naked. हम भी याद करें कि एक ना एक दिन हम भी नंगे थे। In His grace and in His favor, in His love, He has clothed us today. लेकिन उसने अपनी मोहब्बत से और उसके फजल से उसने आज हमें मुलब्बस बनाया है। The garments of salvation, नजात के कपड़े दिए हैं, the robe, overcoat of righteousness. रास्तबाजी की खिलत, रास्तबाजी का खिलत दिया And है। He is expecting us to have these garments of praise in our lives. और हमारी जिंदगियों में ये सिताइश के खिलत पहनने के लिए वो हमें मद्दू कर रहा And है। also have these garments of humility like our Lord. और हमारे खुदावंद की तरह ये हलीमी के कपड़े हम भी पहने And also to put on and have these garments of service. और ये खिदमत गुजारी के लिबास जो हैं वो हम भी पहने। May the Lord bring us into the experience of these 5 garments. और ये 5 तरह के कपड़े जो हैं, लिबास जो हैं, इनके तजुर्बे में हमें खुदावंद आगे लाए। Wherever we have failed the Lord, जहाँ कहीं भी खुदावंद के सामने हम निकम्मे बन गए, let us seek His forgiveness हम खुदावंद से मुआफी मांगेंगे because He is willing and ready to forgive. क्योंकि वो हमें मुआफी बख्शने और हमें माफ करने के लिए तैयार है। And set things right in our lives. हमारी जिंदगियों में वो बातें, वो चीजें हम फिर से दुरुस्त करें And then let us take part worthily in the Lord's table. और उसके बाद खुदावंद की इस मेज में लायक तरीके से हम हाथ डालें। May the Lord help us. खुदावंद इस तरह का मदद हम सबों को दे।